Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 24 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी के लिए। आपकी प्रिपरेशन में ये काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं NIEPVT जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी। मतलब जो लोगों देखने में जिनको दिक्कत होती है उनके लिए यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट ने अभी एक 2 MOU साइन किए ताकि डिजिटल मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा सके। करेक्ट। बेसिकली डिजिटल मटेरियल से क्या होगा, इनको बुक्स प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि ये अपना पढ़ सकें। और अगर आपको याद हो, ब्रेल स्क्रिप्ट किसके लिए होती है? ब्रेल स्क्रिप्ट भी आपकी विजुअली चैलेंज लोगों के लिए होती है। तो यहाँ पर NIPVD ने MOU साइन किया। पहला MOU साइन किया इन्होंने NBT के साथ, नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ, और दूसरा MOU साइन किया इन्होंने DFI के साथ, जो कि है डेजी फोरम ऑफ इंडिया। जो ये NBT के साथ साइन किया ना, यहाँ पे एक यूनिवर्सल डिज़ाइन सेंटर सेटअप करने की बात की गई फॉर रीडिंग इन देहरादून उत्तराखंड। एंड यहाँ पे DFI के साथ एक सेटअप करने की बात की गई है, एक ऑनलाइन लाइब्रेरी फॉर पर्सन्स विद प्रिंट डिसेबिलिटीज इन इंडिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये MOU जो था बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी, इन्होंने साइन किया MOU विद NBT नेशनल बुक ट्रस्ट एंड डेजी फोरम ऑफ इंडिया के साथ टू प्रमोट इंक्लूसिविटी। और यहीं पर ये जो NBT के साथ नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ था टू मेक रीडिंग मटेरियल मोर असेसिबल टू द इंडिविजुअल्स विद वेरी विजुअल डिसेबिलिटीज, एंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन। ये जो यूनिवर्सल डिजाइन सेंटर है, दिस विल फीचर NBT's कलेक्शन ऑफ पब्लिकेशन एंड असेसिबल लर्निंग मटेरियल्स इंक्लूडिंग फिजिकल बुक्स, ब्रेल बुक्स, ई बुक्स एंड ऑडियो बुक्स। वहीं पर अगर बात करें DFI के साथ, ये कोलैबोरेशन विल यूटिलाइज वेरियस असेसिबल फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग डेजी जो कि है डिजिटल असेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, EPUB, BRF ब्रेल रेडी फॉर्मेट एंड अदर्स टू एड्रेस देयर डाइवर्स नीड्स। ठीक है, मार्क करेंगे इसको। बेसिकली विजुअल चैलेंज लोगों को यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, उनको प्रॉपर रीडिंग मटेरियल मिल सके, इसीलिए ये MOU साइन किए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि एक 3D डिजिटल ट्विन मैपिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके इंडिया में। बेसिकली आपकी एक सिटी है, राइट, उसका प्रॉपर 3D मॉडल सेटअप करने के लिए, ताकि जो एनालिसिस की जा सके, जो डिसीजन मेकिंग होगी उसके बेसिस पे उसको ध्यान में रखते हुए उसको एनालाइज करके उसके ऊपर वर्क करके यहाँ पर हम प्रॉपर एक एनालिसिस के बेसिस पे यहाँ पे आपके फाइनल आउटकम ला सकें, राइट। इसीलिए 3D डिजिटल ट्विन मॉडल को लॉन्च करने की यहाँ बात की गई इस मैपिंग प्रोग्राम को, ताकि प्रॉपर एक 3D मॉडल होगा। जैसे आप आयरन मैन मूवीज में, साइंटिफिक मूवीज में नहीं देखते, आप उस मॉडल को ऐसे घुमा सकते हैं, वो हवा में लहराएगा, राइट। आप उसको
अब ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, हमें साइंटिफिक पहले मूवीज़ में लगता था कि अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा फ्यूचर में, लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई हैं जो कि आप अपने सिर्फ कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पे ही नहीं, बल्कि आप प्रोजेक्शन के थ्रू भी आप अपने मॉडल्स को हवा में करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फैंस चाहिए, वो अलग चीज़ पे आ जाते हैं, बट दीज थिंग्स आर पॉसिबल नाउ। तो सिमिलर काइंड का एक 3D डिजिटल ट्विन मॉडल को लॉन्च करने के लिए, जिसको आप कंप्यूटर में अपना रोटेट कर सकते हैं, उसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि हम एनालिसिस वहाँ पे करेंगे तो इस प्रॉपर, अगर हम कोई वहाँ पे सर्विस लाते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका नंबर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किसी पर्टिकुलर सिटीज़ में, तो उस सब के लिए, और उससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो इसी के लिए अभी सर्वे ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया किसके साथ, जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ। और जेनेसिस इंटरनेशनल क्या है, ये एक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, करेक्ट, जो कि जियो स्पेशल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, करेक्ट। और इन्होंने एक पार्टनरशिप करी सर्वे ऑफ इंडिया के साथ ताकि 3D डिजिटल ट्विन मैपिंग प्रोग्राम को इंडिया में लॉन्च कर सके। एंड जेनेसिस पहली कंपनी बन गई इंडिया में जो कि पब्लिक प्राइवेट एग्रीमेंट पे बेस्ड है विद सर्वे ऑफ इंडिया फॉर डिजिटल ट्विनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं फिर। किश्तवर सैफरॉन, ये जम्मू एंड कश्मीर से है, याद रखेंगे, एंड इनको भी जीआई टैग मिला है। आंसर मैंने क्वेश्चन में ही दे दिया। तो किश्तवर सैफरॉन को जीआई टैग मिलेगा। ये किस स्टेट से है, ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से है। अगर जम्मू एंड कश्मीर से बात करें तो कुछ और प्रोडक्ट्स जिनको जीआई टैग मिला है, जैसे बाशौली, पश्मीना, वुलन प्रोडक्ट्स, राइट। देन इसके अलावा आ जाता है आपका भद्रवा, राजमस, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। देन रामबन, सुलाई, हनी, इनको यहाँ पे जीआई टैग मिला, ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं। फिर याद रखेंगे किश्तवर नाम क्यों रखा गया इसका, क्योंकि किश्तवर एक क्या है, डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, जहाँ पर आपका ये सैफरॉन, हमें गुड क्वालिटी ऑफ सैफरॉन मिलता है। मूविंग ऑन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अप्रूव किया $6.5 मिलियन का लोन टू प्रोवाइड इंप्रूव्ड कुक स्टोव्स टू रूरल इंडिया। अब ये इंप्रूव कुक स्टोव्स क्या होंगे, इससे लेस पॉल्यूशन होगा, लेस पॉल्यूशन होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो कम जाएगा, राइट, और हमारी इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे $6.5 मिलियन का ये ग्रीन फाइनेंसिंग की गई है, किसके द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। अब ये टर्म आ जाता है ग्रीन फाइनेंसिंग। ग्रीन फाइनेंसिंग आखिर होता क्या है, ग्रीन फाइनेंसिंग होता है जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट में डालते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करेगा, हमारे इन्वायरमेंट को पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेक्नोलॉजी है वो अभी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुक स्टोव ही हम इसको यूज़ करते हैं तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, लेकिन जब हम इम्प्रूव नई टेक्नोलॉजी के कुक स्टोव्स को यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा जो पॉल्यूशन है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फ्यूल कंजप्शन, वो 65% से रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम बात करें स्मोक एमिशन की, 70% का रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 22.9 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज की जाएगी इन एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू योर नॉर्मल कुक स्टोव्स। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा $6.5 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया ताकि इंडिया में कुक स्टोव्स प्रोवाइड कराए जा सकें टू द रूरल इंडिया, ठीक है। और क्लाइमेट फाइनेंसिंग हम देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, मत्सुगु असाकावा। हेडक्वार्टर का है मनीला, फिलीपींस में। 1966 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था, राइट। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका IWAI। इन्होंने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि गंगा रिवर को यूज़ किया जा सके फॉर कार्गो मूवमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन। तो कार्गो मूवमेंट से क्या होगा, जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं हम जानते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल ए सिटी में रहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आई लिव इन हरियाणा, राइट। तो अगर मेरे को हरियाणा में कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कराना है तो ज़रूरी नहीं है, या फिर इंपोर्ट नहीं, मैंने कुछ ऑर्डर किया ऑनलाइन तो वो प्रोडक्ट हरियाणा की हरियाणा में है, मान लो वो प्रोडक्ट अभी कर्नाटका में है, राइट। तो मेरे को आने में वहाँ से प्रोडक्ट से टाइम लगेगा, करेक्ट। से फॉर एग्जांपल अब मैं बात करूँ, कोई प्रोडक्ट मैंने मंगाया और वो आप रहते भी आप गंगा के रिवर किनारे हैं, तो वहाँ से जो मूवमेंट होगी ना प्रोडक्ट की वो ईजिली हो जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगी, राइट। और उसमें जो प्रोडक्ट को आने में टाइम लगेगा, एक जो हमारी शिपमेंट कॉस्ट है ना, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये कौन सी कंपनी है, तो अमेजॉन ने गंगा रिवर को कार्गो मूवमेंट को यूज़ करने के लिए अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया IWAI, जो कि है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। इसके साथ ही साथ जो पहला
ई कॉमर्स कार्गो फ्लैग ऑफ किया जाएगा। कहाँ से किया जाएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पटना बिहार से लेके कहाँ तक जाएगा कार्गो आपका, कोलकाता वेस्ट बंगाल तक। ठीक है, पटना बिहार से कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये पहला फ्लैग ऑफ किया जाएगा कार्गो, कि जो आपका गंगा को यूज करते हुए कार्गो को डिलीवर किया जाएगा टू फाइनल डेस्टिनेशन। नहीं, यहाँ पे क्या होता है, अमेजोन के अपने खुद के वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे पहले प्रोडक्ट को भेजा जाता है एंड वहाँ से फिर आगे जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं वो उसको आगे डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाता है फिर IWAI की अगर मैं बात करूं, चेयरपर्सन कौन रहेंगे, संजय बनोपाध्याय। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, नोएडा यूपी में, एंड 1986 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट ने अभी पार्टनर किया इंडिया पोस्ट के साथ टू प्रोवाइड पार्सल लॉकर सर्विस एट पोस्ट ऑफिसेस। आई रिपीट, ब्लू डार्ट ने अभी पार्टनर किया इंडिया पोस्ट के साथ ताकि ऑटोमेटेड डिजिटल पार्सल सर्विसेज को सेटअप किया जा सके एट सेलेक्टेड पोस्ट ऑफिस अक्रॉस इंडिया। एंड ये OTP से आपके वन टाइम पासवर्ड से ये ओपन किए जाएंगे एंड इसका पूरा डाटा भी मेंटेन किया जाएगा यहाँ पर। करेक्ट, एंड यहाँ पे याद रखेंगे ये पायलट बेसिस पे ये प्रोजेक्ट ऑफ डिजिटल लॉकर्स ये लॉन्च किया गया था पुणे महाराष्ट्र में, और कब, 2021 में लॉन्च किया गया था पायलट बेसिस पे, और अब ये ऑल ओवर इंडिया को लॉन्च किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं इंडिया पोस्ट की, तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे, वो है आलोक शर्मा। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर रहेगा। 1854 में इंडियन पोस्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। फिर अगर मैं बात करूं ब्लू डार्ट की, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, बेलफॉर मैनुअल। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एंड 1983 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, इंपॉर्टेंट है ये भी मार्क करेंगे। अभी 4 इंडियंस को फीचर किया गया है BBC 100 वीमेन लिस्ट 2023 में, जिसमें से एक है दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर, आरती कुमार राव एंड जैत्सुमा टेंजिन पाल्मो। तो ये वो 4 वीमेन हैं जिनको अभी BBC के 11th एडिशन में ऑफ द BBC 100 वीमेन 2023 की लिस्ट में ऐड किया गया। तो चारों वीमेंस का आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, पूछा जा सकता है। और BBC का अगर मैं बात करूँ हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, तो ये लंदन UK में हेडक्वार्टर रहेगा इनका। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट। अभी रिसेंटली UN पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स, यहाँ पर वाइस चेयर कौन अपॉइंट किए गए हैं, वो है इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू जी। राइट, गिरीश चंद्र मुर्मू ये भी CAG अपॉइंट किए गए हैं ऑफ इंडिया के। करेक्ट, ये जो CAG ऑफ इंडिया है इनको अपॉइंट किया गया है वाइस चेयर ऑफ द UN पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स फॉर 2024 के लिए। तो ये तो है वाइस चेयर। अगर पूछा जाए चेयर कौन अपॉइंट किया गया, तो वो रहेंगे पियरी मॉस्कोविसी। करेक्ट, पैनल ने इनको इलेक्ट किया गया एज द चेयर फॉर 2024, और वाइस चेयर अपॉइंट किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी। गिरीश चंद्र मुर्मू की बात करें तो ये 1985 बैच के IAS ऑफिसर हैं ऑफ गुजरात कैडर, एंड इन्होंने CAG की पोस्ट संभाली थी 8 अगस्त 2020 को, एंड ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पे भी इन्होंने सर्व किया एट चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस इन गुजरात अंडर करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर 7 years, जब ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। एंड अब ये यहाँ पर CAG अपॉइंट किए गए थे 2020 में, और अब इनको वाइस चेयर अपॉइंट किया गया है UN पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स फॉर 2024। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ एडिशनल स्टेक इन नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस बाय बुपा सिंगापुर। तो एक्वायरर कौन है, बुपा सिंगापुर। एक्वायर हो कौन रहा है, टारगेट कौन है, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट, and Bupa Singapore will increase their stake to approximately 63% equity in Niva Bupa. नेक्स्ट आ जाते हैं फिर OneWeb इंडिया। OneWeb इंडिया became the first firm to get in-space approval for satellite broadband services in India। मतलब अभी OneWeb इंडिया, सबसे पहले तो OneWeb याद रखेंगे, ये कंपनी कहाँ की है, ये UK की कंपनी है, और ये कॉन्स्टिलेशन बना रही है अर्थ के चारों तरफ ताकि इंटरनेट सैटेलाइट इंटरनेट को प्रोवाइड कराया जा सके इवन इन रिमोट एरियाज। तो इसीलिए यहाँ पे याद रखेंगे OneWeb इंडिया ने अभी यहाँ पे टाई अप किया किसके साथ, इन्होंने टाई अप किया इनस्पेस के साथ। करेक्ट, और बेसिकली इनको अप्रूवल मिल गया फ्रॉम इनस्पेस। इनस्पेस क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इनसे इनको अप्रूवल मिल गया टू लॉन्च यूटिलसेट OneWeb's कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इन इंडिया। करेक्ट, ताकि इंडिया में
सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड, कमर्शियल सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। एक और चीज़, इनके लिए जो ये अप्रूवल मिला है ना, ये 5 साल के लिए, 5 साल के बाद इनको फिर से यहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ेगा या रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। नोवाक जोकोविच, इन्होंने डिफीट किया जेनिक सिनर को टू विन द 7th ATP फाइनल्स टाइटल। अभी इन्होंने रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है रॉजर फेडरर का। रॉजर फेडरर ने 6 ATP फाइनल्स जीते थे और अब नोवाक जोकोविच ने 7 ATP फाइनल्स जीत ली हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे याद रखेंगे 2008, 12, 13, 14, 15 और 2023 एंड 22 एंड अब 2023 में इन्होंने ATP फाइनल जीते। ये हैं नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं और इन्होंने किनको हराया फाइनल में? जेनिक सिनर को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं फिर ऑब्यूटरी पर। तो फॉर्मर मिस्टर इंडिया नॉकथॉम्बन माईपाक, इनका रिसेंटली निधन हो गया। मिस्टर इंडिया क्या होता है? जैसे आपका मिस यूनिवर्स होता है ना, एक ब्यूटी पेजेंट होता है मेंस के लिए, तो और ये यहाँ पर नॉकथॉम्बन माईपाक, ये मिस्टर इंडिया अपॉइंट किए गए थे। करेक्ट, ये फॉर्मर मिस्टर इंडिया है एंड ये वेटरन बॉडी बिल्डर भी रह चुके हैं मणिपुर के। इनका भी निधन हो गया एट द एज ऑफ 88 इन इम्फॉल मणिपुर। इनका जन्म हुआ था 1935 में इन इम्फॉल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे इन्होंने मिस्टर इंडिया जीता था 1970 में एंड इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया एट मिस्टर यूनिवर्स कॉम्पिटिशन इन 1971 जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ था। करेक्ट, तो अभी रिसेंटली नॉकथॉम्बन माईपाक का निधन हो गया है। मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंट डेज पर आते हैं। पहला है हमारा वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज डे। ये 15 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया 2023 में। जनरली ये डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द थर्ड वेडनेसडे ऑफ नवंबर मंथ। तो थर्ड वेडनेसडे ऑफ नवंबर मंथ को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज डे। करेक्ट, एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट दिस डिजीज, जो कि वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड इलनेस है अक्रॉस द ग्लोब। करेक्ट, और ये 2023 में हमने ये 22वीं वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज डे को ऑब्जर्व किया 15 नवंबर को। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के साथ साथ चीज़ याद रखेंगे एक दौर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए थीम क्या रहेगी इस डे की, तो थीम रहेगी ब्रीथिंग इज लाइफ, एक्ट अर्लियर। आई रिपीट, ब्रीथिंग इज लाइफ, एक्ट अर्लियर, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज डे की, जो कि थर्ड वेडनेसडे को ऑब्जर्व किया जाता है ऑफ द नवंबर मंथ और 2023 में ये 15 नवंबर को था। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2002 में एंड इसका ये 22वां एडिशन था। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज एंड वायलेंस। तो यह 18 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज एंड वायलेंस ऑफ अ चाइल्ड। जो चाइल्ड के साथ सेक्सुअल अब्यूज होता है, उनके साथ जो वायलेंस होता है, उसके बारे में यहाँ पे जागरूकता क्रिएट कराने के लिए एंड उससे जो बच्चे की मेंटल हेल्थ पे जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, करेक्ट, जो मेंटल हेल्थ पे जो टोल आता है, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इस साल 2023 में इसका सेकंड एडिशन ऑब्जर्व किया। तो पहली बार हमने ये कब ऑब्जर्व किया था? 2022 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। राइट, 18 नवंबर 2022 को पहली बार, और हर साल 18 नवंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर वर्ल्ड टॉयलेट डे। कब ऑब्जर्व करते हैं? 19 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो यूएन वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑब्जर्व किया गया 19 नवंबर को टू रेज अवेयरनेस अबाउट 3.5 बिलियन पीपल विदाउट एक्सेस टू सेफ सैनिटेशन एंड एनकरेज द एक्शन टू एड्रेस द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। राइट, और याद रखेंगे यहीं पर एक कैंपेन, ग्लोबल कैंपेन थीम जो रहेगी वर्ल्ड टॉयलेट डे की, एक्सेलरेटिंग चेंज, एंड हमिंगबर्ड यहाँ पे सिंबल रहेगा वर्ल्ड टॉयलेट डे का, बिकॉज कि दो वो हमिंगबर्ड बहुत छोटा है लेकिन इट इज़ अ माइटी। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ पिंक टॉयलेट्स की, तो पिंक टॉयलेट्स कहाँ पे लॉन्च किए गए थे? त्रिपुरा। कहाँ पे? त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में ये लॉन्च किया गया था। और पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड टॉयलेट डे? 2013 में, 19 नवंबर 2013 को पहली बार ऑब्जर्व करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्टेट न्यूज़ के ऊपर। अभी ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इनॉग्रेट किया AIFF फीफा टैलेंट अकेडमी। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। आई रिपीट, AIFF फीफा टैलेंट अकेडमी को अभी लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पर? ओडिशा, भुवनेश्वर में। करेक्ट, इससे क्या होगा? एक तो फुटबॉल के बारे में लोगों को ज़्यादा खेलने को मिलेगा, उसके बारे में पता लगेगा और इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी अमंग द यूथ। बच्चे फिट रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे एंड अ टोटल ऑफ 50 टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर्स को इंक्लूडिंग 15 फ्रॉम ओडिशा अंडर 14 कैटेगरी में इनको सेलेक्ट किया जाएगा फॉर AIFF फीफा अकेडमी फ्रॉम अक्रॉस इंडिया।
ठीक है, तो ये AIFF फीफा टैलेंट अकेडमी भी कहाँ पे इनॉग्रेट की गई? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। NIEPVD ने MOU साइन किया नेशन बुक ट्रस्ट एंड डेजी फॉरम इंडिया के साथ, ताकि जो विजुअली डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा सके। सर्वे ऑफ इंडिया एंड जेनेसिस इंटरनेशनल ने पार्टनर किया फॉर 3D डिजिटल ट्विन मैपिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। किश्तवर सैफरॉन, ये कहाँ का प्रोडक्ट है? जम्मू एंड कश्मीर का, जिसको GI टैग मिला। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया $6.5 मिलियन का लोन टू ग्रीनवे। देन IWAI एंड अमेजॉन ने साइन किया MOU टू यूटिलाइज गंगा रिवर फॉर कार्गो मूवमेंट। देन ब्लू डार्ट ने पार्टनर किया इंडिया पोस्ट के साथ टू प्रोवाइड पार्सल लॉकर सर्विसेज एट पोस्ट ऑफिसेज। देन 4 इंडियंस फीचर्ड ऑन BBC 100 वीमेन लिस्ट, जो कि हैं दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर, आरती कुमार राव एंड जत्सुमा टेंजिंग पाल्मो। देन UN पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स, यहाँ पे इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू को इलेक्ट किया गया एज द वाइस चेयर फॉर 2024। देन CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ एडिशनल स्टेक इन नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस बाय बुपा सिंगापुर। नेक्स्ट, OneWeb इंडिया बिकेम द फर्स्ट फर्म टू गेट इन स्पेस अप्रूवल फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इन इंडिया, और 5 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। देन नोवाक जोकोविच, इन्होंने डिफीट किया जेनिक सिनर को टू विन हिज 7th ATP फाइनल टाइटल, और इन्होंने रॉजर फेडरर का जो 6 ATP टाइटल था उसको ब्रेक कर दिया है। देन फॉर्मर मिस्टर इंडिया नॉकथॉम्बन माइपाक, इनका निधन हो गया। वर्ल्ड क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज डे 15 नवंबर को ऑब्जर्व की जाती है। वर्ल्ड डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज एंड वायलेंस 18 नवंबर को। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को। एंड ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इनॉग्रेट किया AIFF फीफा टैलेंट अकेडमी, कहाँ पर? ओडिशा, भुवनेश्वर में। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा। अकॉर्डिंग टू SBI रिसर्च पेपर, जिसका टाइटल रहेगा PM स्वानिधि स्कीम, ये है स्ट्रेंथनिंग द कंट्रीज सोशल फैब्रिक बाय एम्पावरिंग ग्रास रूट मार्केट मैवरिक्स। अक्टूबर में स्वानिधि स्कीम का टाइटल लॉन्च किया गया इस पेपर का। करेक्ट, स्वानिधि के ऊपर पूछा जा रहा है कितने % यहाँ पे बेनिफिशियरीज हैं अंडर स्वानिधि स्कीम, जो कि नॉन जनरल कैटेगरी से आते हैं। PM स्वानिधि स्कीम के जो बेनिफिशियरीज हैं वो 75% नॉन जनरल कैटेगरी से आते हैं। अब ये स्वानिधि स्कीम है क्या, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो स्वानिधि स्कीम बेसिकली क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्कीम। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये है PM स्वानिधि स्कीम। करेक्ट, ये क्या है? एक माइक्रो क्रेडिट लैंडिंग स्कीम है। माइक्रो क्रेडिट लैंडिंग स्कीम रहेगी आपकी स्वानिधि स्कीम। करेक्ट, इसका एम क्या है? वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कराना टू स्ट्रीट वेंडर्स। PM स्वानिधि स्कीम, तो पूछा जा रहा है PM स्वानिधि स्कीम के अंडर कितने % यहाँ पे आपके नॉन जनरल कैटेगरी से आ जाते हैं बेनिफिशियरीज? तो 75% नॉन जनरल कैटेगरी से आते हैं। इसमें से 44% आपके आ जाते हैं OBC कैटेगरी से एंड 22% आ जाते हैं SC एंड ST कैटेगरी से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट, जिन्होंने रिसेंटली जिनको ऑनर किया गया नेशनल मेडल ऑफ साइंस से, एंड वो कौन है जिनको नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया फ्रॉम जो बाइडन, प्रेसिडेंट ऑफ USA। तो याद रखेंगे 2 अलग मेडल हैं। सुब्रा सुरेश, इनको सम्मानित किया गया नेशनल मेडल ऑफ साइंस से, एंड अशोक गडगिल, इनको सम्मानित किया गया नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अवार्ड से। करेक्ट, दोनों को जो बाइडन के द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बताओ वो 4th स्टेट कौन सी बनी जहाँ पर ई कैबिनेट सिस्टम को भी लॉन्च किया गया। तो 4th स्टेट टू इम्प्लीमेंट ई कैबिनेट सिस्टम वो है त्रिपुरा, और त्रिपुरा में ही याद हो तो पिंक टॉयलेट्स भी आपके त्रिपुरा में ही लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली अप्रूव किया $400 मिलियन का पॉलिसी बेस्ड लोन, ताकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके, एंड जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनको भी और ज़्यादा बेटर तरीके से लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने यहाँ पे $400 मिलियन लोन अप्रूव करा है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके बेटर सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा सके लोगों को। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लस एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों के द्वारा मिलकर। फिर अगर आपसे पूछा जाए यूपी का स्टेट एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, यूपी का स्टेट एक्वेटिक एनिमल कौन सा रहेगा, वो है डॉल्फिन। राइट, डॉल्फिन यूपी का स्टेट एक्वेटिक एनिमल रहेगा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज रिसेंटली अपॉइंटेड रॉबर्ट फाइको एज द प्राइम मिनिस्टर। तो स्लोवाकिया के
प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? रॉबर्ट फाइको, मार्क करके चलेंगे इसको, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ अभी एक 5 साल का रोड मैप साइन किया गया या फिर रोड मैप सेटअप करने की बात की गई इन डिफेंस कॉपरेशन। इंडिया और किस कंट्री के बीच में ये रहेगा? तो टैंजानिया। इंडिया और टैंजानिया 5 साल का एक रोड मैप सेटअप करेंगे फॉर डिफेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। तो वो केरला स्टेट बनी जिसके हर डिस्ट्रिक्ट में हमें हॉल मार्किंग सेंटर्स देखने को मिलेंगे। और ये हॉल मार्किंग सेंटर्स क्या होते हैं? बेसिकली गोल्ड की क्वालिटी को जब हमें जज करना होता है, उसको देखना होता है कितना क्वालिटी का गोल्ड है, कितना प्योर गोल्ड है, तो ये हॉल मार्किंग सेंटर्स उसकी अप्रूवल देते हैं, उसको मतलब एक तरीके से ठप्पा लगाते हैं कि हाँ ये इतना यहाँ पर इसमें गोल्ड रहेगा आपका, ठीक। फिर इसी के साथ साथ बताओ, अभी रोजगार प्रयाग पोर्टल, रोजगार प्रयाग पोर्टल, ये रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया किसके द्वारा? उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर के द्वारा। कब लॉन्च किया गया? उत्तराखंड यूथ महोत्सव के टाइम पे आपका ये रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किस कंपनी को रिसीव हुआ इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर? तो वो रहेगा ज़ाकपे। ज़ाकपे याद रखेंगे, ज़ाकपे क्या है? ये आपका मोबीविक का पेमेंट गेटवे आर्म है ज़ाकपे, और इनको अभी ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की तरह ऑपरेट करने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ लेक लड़की स्कीम, ये लेक लड़की स्कीम किस स्टेट के द्वारा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी लेक लड़की। इसी के साथ साथ बताओ, ऑपरेशन अजय क्या है? ऑपरेशन अजय था कि जो इंडियंस इजराइल में फंस गए थे उनको वापस इंडियन लाने के लिए जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन अजय। ए हेल्प, ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया था ए हेल्प। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत टैक्स 2024। ये टैक्स क्या सिग्निफाई करता है? टेक्सटाइल, राइट। तो अभी भारत टेक्सटाइल फेस्टिवल, भारत टेक्सटाइल फेस्टिवल अभी हमें देखने को मिलेगा फरवरी 2024 में, एंड ये वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल फेस्टिवल या इवेंट होने वाला है। फरवरी 26 से लेके फरवरी 29 तक हमें ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, भारत मंडपम एंड यशोभूमि, ये कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। यहाँ पर इन वेन्यूज पर हमें ये इवेंट देखने को मिलेगा, भारत टेक्सटाइल फेस्टिवल, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहीं पर इंडिया रिप्रेजेंट करेगा 5F विजन, इंडियाज 5F विजन को रिप्रेजेंट कराया जाएगा, जो कि है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन। ये इंडिया का 5F विजन है। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे, एक्सपो विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंसोर्टियम ऑफ 12 टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, राइट। कमिंग बैक, भारत टेक्सटाइल 2024 ये इंडिया का ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट होगा, होस्ट करेगा हमारा इंडिया फरवरी 2024 में 26 से 29 फरवरी के बीच में भारत मंडपम एंड यशोभूमि पर ये हमें इवेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो हम कह सकते हैं कहां पर होगा? न्यू दिल्ली में होगा। नेक्स्ट आ जाता है एक जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज जिसका नाम है हरिमऊ शक्ति। हरिमऊ शक्ति ये एक जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड आर्मी ऑफ मलेशिया। इन दोनों के बीच में भी अभी एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। जो लोकेशन है वो इस बार इंडिया में हो रही है, उमरोई मेघालय में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी, राइट। और जो इसका लास्ट एडिशन था 2022 नवंबर में हुआ था, वो हमें कहाँ देखने को मिला था? वो हुआ था आपका मलेशिया में। और इस बार 5 नवंबर से ये एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है। 2 वीक लॉन्ग ये आपकी एक्सरसाइज रहेगी और कहाँ पर होगी? उमरोई मेघालय में ये आपकी एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाएगी। फिर इसमें यहाँ पर अगर हम देखें 120 से भी ज़्यादा आर्मी पर्सनल पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम इंडिया, एंड इंडिया की राजपुताना रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगी। फिर अगर हरिमऊ शक्ति की बात करें तो ये क्या है? इंडो मलेशियन जॉइंट एक्सरसाइज। सिंस 2012 ये कंडक्ट कराते आ रहे हैं हम, और इसका जो लास्ट एडिशन था हरिमऊ शक्ति 2022 का, वो कहाँ पर हुआ था? मलेशिया में हुआ था, नवंबर 2022 में। यूनाइटेड नेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 अक्टूबर 2023 को, क्योंकि 24 अक्टूबर को 1945 में ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था यूएन, इसीलिए हम यूनाइटेड नेशंस डे ऑब्जर्व करते हैं 24 अक्टूबर को। फिर 2023 में अगर हम बात करें, इसकी 78th एनिवर्सरी हमें देखने को मिलती है। एंड इसी की आप थीम याद रखेंगे यूनाइटेड नेशंस डे की, वो है फ्रंट लाइन्स ऑफ क्लाइमेट
एक्शन। यूएन के सिक्योरिटी जनरल कौन रहेंगे? एंटोनियो गटर्स, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में, एंड 1945 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, वर्ल्ड पोलियो डे। पोलियो हम जानते हैं एक तरह की डिजीज होती है, 5 साल से छोटे बच्चों को ये इफेक्ट करती है। पोलियो वायरस से ये आपकी डिजीज होती है, करेक्ट। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए इसको एलिमिनेट करने के लिए, अगर आपको याद हो, अमिताभ बच्चन जी आते थे 4 बूंद जिंदगी की, वो पोलियो से ही राहत देने के लिए ये हम, और बच्चों को अगर आपने देखा हो, ऑलमोस्ट हर बच्चे ने यहाँ पर जो हमें पढ़ रहे हैं उन्होंने पोलियो की ड्रॉप जरूर ली होंगी, करेक्ट। तो 24 अक्टूबर 2023 को हम ऑब्जर्व करते हैं 22nd ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे। और पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2002 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, वर्ल्ड पोलियो डे को। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। तो ये डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 24 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है, टू ड्रॉ टू द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड टुवर्ड्स द डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, एंड जो हमारे इंटरनेशनल कॉपरेशन को हमें और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि जो डेवलपमेंट है हमारी वो हो सके, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो सके। क्योंकि इंटरनेट की मदद से हमने देखा कि जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है अब थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट, एंड इसी से हम कैसे इंटरनेशनल कॉपरेशन की मदद से और स्ट्रेंथन कर सकते हैं इस डेवलपमेंट प्रॉब्लम को, करेक्ट। तो 24 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, और पहली बार 1973 में इसको ऑब्जर्व करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, अभी वो कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है जिनको अभी हैबिटेट राइट्स मिल गए हैं छत्तीसगढ़ में? और ये सेकंड ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जिनको अभी हैबिटेट राइट्स मिले हैं, ये है बायगा, राइट। बायगा ये सेकंड कम्युनिटी बनी है, या सेकंड ट्राइबल कम्युनिटी बनी है, ट्राइबल ग्रुप है जिनको भी हैबिटेट राइट्स मिले हैं। पहला कौन सा था? वो था कमार ट्राइबल ग्रुप, वो पहला ट्राइबल ग्रुप मिला था जिनको हैबिटेट राइट्स मिले थे छत्तीसगढ़ में। और अब दूसरा ट्राइबल ग्रुप कौन सा बन गया? वो है बायगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरनेशनल शेफ्स डे। शेफ्स कौन होते हैं? जो आपका खाना बनाते हैं, राइट। तो इनके लिए ये इंटरनेशनल शेफ्स डे ऑब्जर्व किया जाता है इनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये पेट भरते हैं, राइट। एंड काफ़ी ये आपके हर होटल में आप देखेंगे बड़े बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ये आपका काफ़ी ज़्यादा फूड को टेस्टी बनाते हैं ताकि जो लोग हैं वो इसको खुश होके खा सकें, एंड इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करी जाती है, राइट, ताकि इनको भी यहाँ पे ऑनर किया जा सके। तो 2023 में हमने 20वां इंटरनेशनल शेफ डे ऑब्जर्व किया, और यहाँ पे थीम याद रखेंगे या कैंपेन याद रखेंगे, वो है ग्रोइंग ग्रेट शेफ्स, ताकि और बेटर टेस्टी फूड आप लोगों को मिल सके। पहली बार कब ऑब्जर्व किया गया था? 2004 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, एंड अब 2023 में इसका 20वां एडिशन हमने ऑब्जर्व करा है। नेक्स्ट आ जाते हैं यंग याकूबोव। इन्होंने भी कतार मास्टर्स को जीत लिया है, ये चेस से बिलोंग करते हैं, राइट, और इन्होंने कतार मास्टर्स 2023 को जीत लिया है। फिर यहीं पे याद रखेंगे थर्ड पोजीशन इंपॉर्टेंट आ जाती है, क्यों? क्योंकि ये इंडियन है जिन्होंने थर्ड पोजीशन पे आए हैं, वो है SL नारायण। ये अभी थर्ड पोजीशन पे है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द कतार मास्टर्स 2023। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्यूट्री की। पद्मश्री अवॉर्डी बीरेंद्र नाथ दत्ता, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये एक फेमस असमी स्कॉलर, लिंग्विस्ट एंड सिंगर हैं जिनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 88 इन गुवाहाटी, असम। 1935 असम में इनका जन्म हुआ था। ये असम के कॉलेजेस में लेक्चरर रह चुके हैं, HOD रह चुके हैं ये। फिर आपके गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में, तेजपुर यूनिवर्सिटी में इन्होंने रिटायरमेंट के बाद ज्वाइन किया था एज द प्रोफेसर। फिर इसके बाद ये प्रेसिडेंट भी सर्व कर चुके हैं ऑफ असम्स प्रीमियर लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशन, जो है असम साहित्य सभा, फॉर 2 टर्म्स, दैट इज 2003 से 2004 में 2 टर्म्स के लिए। फिर इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2009 में फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन, एंड टैगोर रत्न अवार्ड से ऑफ संगीत नाटक अकेडमी इनको 2012 में सम्मानित करा गया। तो इनका रिसेंटली निधन हो गया है, बीरेंद्र नाथ दत्ता जी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स पर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उन्नति हुड्डा, राइट। ये बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं, उन्नति हुड्डा, एंड इन्होंने अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल जीत लिया है, या फिर हम बोले वीमेंस सिंगल्स टाइटल जीत लिया है एट द आबू धाबी मास्टर्स। आबू धाबी मास्टर्स का विमेन सिंगल टाइटल किन्होंने जीत लिया? उन्नति हुड्डा ने। ये 16 साल की है। अगर यहीं पे वीमेंस डबल टाइटल की मैं बात करूं तो अश्विनी पोनप्पा एंड तनिषा क्रास्टो, इन्होंने यहाँ पे वीमेंस डबल टाइटल जीत लिया है। अगर मेन सिंगल्स टाइटल की मैं बात करूं ऑफ फॉर आबू धाबी मास्टर्स, वो कौन रहेंगे? वो है मैड्स क्रिस्टोफरसन, इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीत लिया, या फिर उन्होंने मेडल जीत लिया है
फॉर द मैन सिंगल टाइटल इन्होंने जीत लिया। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क क्वेश्चन। पहला, जेवर मिलेई हु वाज सीन इन द न्यूज इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सेकेंड, चाइना रिसेंटली साइंड अ बायलेटरल करेंसी स्वैप अग्रीमेंट विद विच कंट्री? और तीसरा, वर्ल्ड हेरिटेज वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ड्यूरिंग विच मंथ? तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए आप सभी से, राइट? और जो भी क्वेश्चन आपको चीज़ में समझ नहीं आती आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट डे हम उसको डिस्कस करने के लिए फुल रेडी है। करेक्ट। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.